I'm Raida Latif, as you all know from the previous session and or from the flyer. अपने first session में we explored in detail the basics, the fundamentals of financial literacy, the concepts of investments, laying the foundation for better understanding on the art of savings and investing. We also talked about the budget sheet. We looked at a specimen budget sheet और उसके बाद then we closed it on an overall assessment of how to prepare your budget. Once you save, then you invest, and you also to ensure that you utilize your funds in a better way. हमने उसकी बात की. Today's focus would be on asset classes. We will understand what asset classes are. It is an important subject because it is crucial for any investor क्योंकि अगर आपको अपना investments को diversify करना है, as we all know, we've heard this, you know, I mean the adage that you need to not put all your eggs in one basket. That perspective, हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, रिस्क मैनेज करने की बात करते हैं, पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात करते हैं. सो विद इन अ पोर्टफोलियो एसेट क्लासेस होती हैं. मुख्तलिफ एसेट क्लासेस को कंबाइन करके आप अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिनमें इक्विटीज भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी हो सकते हैं. ऑल दीज आर वेरियस एसेट क्लासेस. So today's session, we will not only define and explain asset classes, we will provide insights and strategies on how to incorporate them into your investment portfolio. By the end of this webinar, we hope that you will have a clear understanding of the various investment avenues, the instruments that are available at your disposal, and how you should achieve, where you can access them, and how you should achieve your financial goals. And we will go and elaborate a bit about the stock market, what are the importance of market trends, what is KC100, उन सब के ऊपर भी आज के सेशन में हम बात करेंगे. क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से अवेलेबल. So thank you for joining us today. Let's get started. मैं अपनी slides share करती हूँ screen share पे. Just a second. Do give your feedback on the previous sessions and also today's session whenever when you're done, and you can share your feedback. So, okay, I hope everybody can see my screen. हम begin करते हैं. What is an asset class? So basically asset class बोलते हैं हम, ये term बहुत सुनते रहे हैं, asset class, asset class. Asset class actually होती क्या है और होता क्या है और ये किस तरह काम करता है. So I mean, if you go with the bookish definition, so any asset class is a group of investments that exhibit similar characteristics, जिनकी functionality similar हुए, which are subject to the same laws and regulations. So अगर म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड एक एसेट क्लास है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं which actually are critical and which are different, but they have similar features, similar characteristics, जिसके अंदर डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं. म्यूचुअल फंड्स को किस तरह देखा जाता है, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होते हैं, उनको असेस करने के लिए नैव देखी जाती है, उनकी प्राइस असेसमेंट या उनकी इम्प्रूवमेंट असेसमेंट, उनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए. ओके, अच्छा. सो एसेट क्लासेस एज आई सेड सिमिलर फीचर्स होते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे म्यूचुअल फंड है, उनके यूनिट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, बैलेंस म्यूचुअल फंड हो, या वो क्या कहते हैं एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड हो. उनको यूनिट्स के तौर पे देखा जाता है. उनकी जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, आउटलाइंस हैं, वो सब सिमिलर होती हैं. सो दैट मीन्स इट इज वन एसेट क्लास. इसी तरह इक्विटीज एक एसेट क्लास है. मुख्तलिफ शेयर्स होते हैं, शेयर्स की प्राइसेस होती हैं, मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, उनके सिंबल्स डिफरेंट होते हैं, बट how they behave is inherently similar. So there's very little correlation between
different asset classes, not necessarily negative, but हर asset class एक different तरीके से behave करती है, और उसकी behavior के patterns different होते हैं. जरूरी नहीं है वो दूसरी asset class की inversely proportional ही हो. So there is not necessarily a correlation. Financial advisors focus on asset class as a way to help investors diversify their portfolio. So जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि you never put all your eggs in one basket, you diversify your portfolio, you diversify your risk. कुछ long term होते हैं, कुछ short term होते हैं. You build a portfolio, and that is what financial advisors also do. अब एक क्विक लुक देख लेते हैं, क्विक व्यू ले लेते हैं मुख्तलिफ एसेट क्लासेस का जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, जिसमें इक्विटी आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, फंड्स के अंदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी होते हैं, फिर रिटायरमेंट स्कीम्स हैं जिनको वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स कहते हैं. ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास होती है. रियल स्टेट ऑब्वियसली अनदर ह्यूज एसेट क्लास, एंड पाकिस्तानी की आई वुड से इज अ फेवरेट एसेट क्लास, क्योंकि हम हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है कि आप प्रॉपर्टी जरूर ले, प्रॉपर्टी बनाएं. फॉरेक्स अगेन दैट इज एन इम्पोर्टेंट एसेट क्लास. पाकिस्तान में इतना इसके डॉक्यूमेंटेड या आप कह लें ट्रेडिंग के उसमें इतने अवेलेबल नहीं है. ऑल दो स्टॉक कमोडिटीज एक्सचेंज के ऊपर फॉरेक्स के पेयर्स हैं टू ट्रेड इन. इंश्योरेंस अनदर ह्यूज एसेट क्लास, बिकॉज उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी है, जनरल इंश्योरेंस भी है, रिटायरमेंट प्लान्स भी हैं. लाइफ इंश्योरेंस ऑब्वियसली इट्स एसेट क्लास एज वेल एज a protection. Commodities, the commodities exchange offers commodities, whether it's gold, it's silver, it's oil, मुख्तलिफ commodities मौजूद हैं. Mutual funds, as I said, they're there through asset management companies. National saving certificates, ये bonds, इनको bonds भी कहा जाता है, saving certificates हैं, ये डेट की एसेट क्लास में कवर होते हैं. तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में भी मुख्तलिफ किस्म की फीचर्स होते हैं. एक क्विक स्नैपशॉट कह लें या समरी कह लें कि म्यूचुअल है तो म्यूचुअल फंड क्लास के कौन से इंस्ट्रूमेंट, इनकम फंड हैं, अगेन दे आर डेट बेस्ड फंड्स. इक्विटी फंड्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट, इक्विटी, स्टॉक फंड्स, इनको ये एक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स है. फिर बैलेंस फंड्स है, वो है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है डेट एंड इक्विटी का, यानी उसमें कुछ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स के इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, कुछ इक्विटी भी होगा. इसी तरह इंडेक्स फंड्स है. इंडेक्स फंड्स जो है वो इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं. सो फॉर एग्जांपल आपके पास इंडेक्स ट्रैकर फंड में कैसी 100 का इंडेक्स ट्रैकर फंड है, या डिविडेंड 20 इंडेक्स फंड हो. सो वो अभी अभी इतने ज्यादा हम स्पेशलिटी फंड्स की तरफ नहीं गए या इंडेक्स फंड्स की तरफ नहीं गए. देन दे आर फंड ऑफ फंड्स जिसमें कुछ कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स होते हैं, कुछ एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं. मुख्तलिफ फंड्स का एक फंड भी मौजूद है. तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एसेट क्लास के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको कहाँ से मिलते हैं. दीज आर अवेलेबल थ्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. अगर हम मजीद इसके ऊपर बात करें म्यूचुअल फंड्स के अंदर, अगर हम देखें तो कुछ इसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दे आर ऑलवेज अनलाइक प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करना चाहें, रिडेम्पशन इज अ वर्ड दैट इज यूज. एक होता है इन्वेस्टमेंट, जब आप पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स लें. दूसरा टर्म है रिडेम्पशन, दैट इज व्हेन यू सेल ऑफ योर यूनिट्स एंड यू गेट और रिडीम योर मनी या योर प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट या योर प्रॉफिट्स ऑल्सो. सो जिस तरह म्यूचुअल फंड्स के अंदर ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स है, उसमें उसमें आप किसी वक्त भी एंटर हो सकते हैं, किसी वक्त भी उसमें से एग्जिट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज जनरली आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मैनेज करती हैं. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जो कि फंड मैनेजर्स कहे जाते हैं, जिनको फंड मैनेजर्स कहा जाता है, और आप उन वो आपके पैसे को कलेक्ट करके मुख्तलिफ एसेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके एक रिटर्न आपको देते हैं.
जनरली इसके अंदर पहले होता था, अब टैक्स बेनिफिट एज सच नहीं है, बट सीजीटी अप्लाई होता है। विद होल्डिंग टैक्स आपको डिपॉजिट्स में अप्लाई होता है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में सीजीटी अप्लाई होता है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में विद होल्डिंग टैक्स भी अप्लाई होता है अगर आप डिविडेंड ले रहे होते हैं, अगर आप प्रॉफिट ले रहे होते हैं। तो किस तरह खरीदा जाता है, आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, आप अपनी इंटेंशन शो करते हैं, वो आपकी रिस्क असेसमेंट करके आपका एक प्रोफाइल बना के फिर आपको कुछ एडवाइस कर रहे होते हैं। या अगर आपने खुद स्टडी की हुई थी तो आपको पता होता है कि आपको किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कौन सा वाला म्यूचुअल फंड सूट करता है, आपकी नीड्स को सूट करता है, एंड देन यू कैन कॉल देम एंड आस्क देम टू इन्वेस्ट। अगर एक दफा आपका पोर्टफोलियो बन गया है म्यूचुअल फंड्स का, या आपका अकाउंट बन गया है, आप इसको ऑनलाइन भी खुद इन्वेस्टमेंट फर्दर और रिडेम्पशन दोनों चीजें मैनेज कर सकते हैं। आप एक वक्त में मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं, आप किसी भी वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना भी चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किसी वक्त भी रिडीम कर सकते हैं या विदड्रॉ कर सकते हैं। सो इसमें एक ट्रस्टी होती है, और एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको ओडी कहा जाता है। ओके, जनरली ये ट्रस्ट के अंदर के स्ट्रक्चर में रजिस्टर होते हैं, और इंडिपेंडेंट ट्रस्टी होता है जो कि एसईसीपी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। सो जनरली अंडर द कस्टडी ऑफ एसईसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ये चलता है। अब आते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर। तो इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स हैं, या बॉन्ड कह लें इसको। ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं जो कि 10 ईयर बॉन्ड्स होते हैं, बहबूद हैं जो कि ऑनगोइंग होते हैं, इसमें आप मंथली प्रॉफिट अवेल कर सकते हैं। बहबूद इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिटायरीज एंड विडोज। सो कंपैरेटिवली इसमें रिटर्न, कंपैरेटिवली रिटर्न बेहतर होता है अपने रेगुलर स्पेशल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स के मुकाबले में। फिर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, अगेन दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट जहां आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और आपको एक रेगुलर इनकम मिलती है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, देन शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये सब अवेलेबल कहाँ से होते हैं? ये थ्रू आउट द सिटी, थ्रू आउट द कंट्री, नेशनल सेविंग स्कीम्स, नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं जिसकी ब्रांचेस मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है, वेबसाइट है, उस पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि आपको ये सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सो आप अपने बैंक के काउंटर से चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कमोडिटीज के ऊपर। कमोडिटीज, ओके, कमोडिटीज के अंदर मेटल्स हैं, एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, एंड करेंसी पेयर्स हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान कमोडिटीज मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर ये आपको मुख्तलिफ व्हीकल्स या इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। हेजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुगर, कॉटन, कॉफी, कोको, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्री में मौजूद होते हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को विजिट करके आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त पीमैक्स के ऊपर कौन कौन सी एग्री कमोडिटीज, आई थिंक राइस है वहाँ, सारी सारी तो नहीं है बट दो तीन एग्री कमोडिटीज भी अवेलेबल हैं, मेटल्स हैं, एनर्जी है, क्रूड ऑयल वगैरह है इनके पास अवेलेबल, मेटल में गोल्ड एंड सिल्वर है। सो पीमैक्स की वेबसाइट पे मौजूद आपको ब्रोकर्स की भी लिस्ट मिल जाती है। प्रोसेस ये है कि आप ब्रोकरेज कमोडिटी ब्रोकर्स के पास अकाउंट खोलते हैं और देन ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स, फॉरेक्स में फॉरेन करेंसी या सेविंग अकाउंट्स हैं, और करेंसी पेयर्स हैं जो कि आपको पीमैक्स की प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं, और अगेन आप अपने कमोडिटी ब्रोकरेज अकाउंट के साथ इसमें काम कर सकते हैं। बैंक्स वगैरह के साथ भी आप करेंसी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं थ्रू फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट्स। कितने बैंक अलाउ करते हैं ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, विद द वे डॉलर्स का इस वक्त चल रहा है रिक्वायरमेंट इन द कंट्री। रियल स्टेट के अंदर देखा जाए तो रियल स्टेट प्रॉपर्टी डीलर से आप ले सकते हैं। ऑफकोर्स मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ रियल स्टेट प्राइसेस हैं। ज़मीन.com पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी हैं। ये जिस तरह शेयर्स छोटे छोटे साइज के अवेलेबल होते हैं, तो रीट में भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं या ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो कि जब रीट
लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है रियल स्टेट का, उसमें से आप, जिस तरह डॉल्मेन का रीट है, जब वो डॉल्मेन शुरू हुआ था, रीट उसका अनाउंस हुआ, तो उसमें मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करके छोटे छोटे शेयर्स ले लिए थे। तो उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सब शेयर होल्डर हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इस रीट में इन्वेस्ट किया, जिन्होंने जब अनाउंस हुई थी। और वक्त के साथ एज द एंटिटी या एज द प्रोजेक्ट इज मेकिंग मनी, तो इन्वेस्टर्स को भी एक सर्टेन जितना उनका शेयर है प्रोरेटा उनको, या प्रोरेट उन्हें वो उसका बेनिफिट मिल जाता है। क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन, लाइटकॉइन, ये सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू अवेलेबल हैं। ऑल्दो पाकिस्तान में बिटकॉइन क्रिप्टो इज नॉट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, इट इज अ ग्रे एरिया, ग्रे मार्केट। एसईसीपी उसको कवर नहीं करता, स्टेट बैंक इसको कवर नहीं करता, इसकी कोई रेगुलेशंस मौजूद नहीं है, कोई परमिशंस नहीं है। तो जो एक्सचेंजेस कर रहे हैं ऑपरेट इस वक्त पाकिस्तान में, वो कर रहे हैं ऑन देयर ओन थ्रू अ ग्रे मार्केट। काफी मुख्तलिफ टाइम्स पे एससीसीपी ने, स्टेट बैंक ने इन पे क्रैक डाउन भी किया है। सो सो वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज वी रियली डोंट नो कि आप जो यूटिलाइज कर रहे हैं, जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कितना रियल है, कितना ऑथेंटिक है, और कितना आपको प्रॉफिट दे पाएगा। बेसिकली शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स को हम टेन्योर्स पे भी देख सकते हैं। देर आर टीडीआर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म देखे जाते हैं। ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं जिसमें टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स हैं। आप अगर बैंक से या अपने आईपीएस अकाउंट से या ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू ट्रेजरी बिल्स खरीदना चाहें, तो वो आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के या 1 ईयर बॉन्ड्स में की सूरत में अवेलेबल होते हैं। सो दीज आर ऑल ट्रेजरी सिक्योरिटी। इसके अलावा आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड भी देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में स्टॉक्स, हम इक्विटी या स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल कहते हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म में इसमें काफी मूवमेंट होती है। और जब भी हम स्टॉक्स की बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म व्यू के साथ स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। अच्छा, देन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी, इंटरेस्ट पेइंग बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में आपका पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या पीआईबीज मौजूद हैं। सुकूक्स इज अनदर ऑप्शन ऑन लॉन्ग टर्म, क्योंकि 10 साल के सुकूक्स होते हैं, 5 साल के सुकूक्स होते हैं, 3 साल के सुकूक्स भी होते हैं। और रिसेंटली 1 साल हुआ है तकरीबन, आई थिंक दिसंबर ऑनवर्ड्स, well 7 months to be exact, this is the 7th month के सुकूक्स आपको स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। सो स्टॉक्स, स्टेट बैंक, पाकिस्तान, आई एम सॉरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, एससीसीपी ने स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अब सुकूक्स का ऑप्शन करना स्टार्ट किया है सिंस दिसंबर ऑफ 2023। So any investor who is interested in equities, who is interested in ETFs, who is interested in sukuk investments, even T-bills भी आपको सेकेंडरी मार्केट के बट मिल जाते हैं थ्रू द ब्रोकरेज अकाउंट। ब्रोकर के पास जब आप अकाउंट खोलते हैं, तो आप अपने ब्रोकर को बताते हैं कि हमें सुकूक्स के ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है, और वो आपको ऑप्शन में कितना अमाउंट है, कितने सुकूक्स लेने हैं, कितने ड्यूरेशन का सुकूक लेना है, 6 महीने का, साल का, ये सारी आप डिटेल्स देंगे, और वो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइज करेंगे जब भी ऑप्शन होगा। इस सारी डिटेल्स का, ऑप्शंस के कैलेंडर्स हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जीडीएस या जीआईएस के पेज के नाम से या सुकूक के पेज के नाम से मौजूद है, जहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और ऑप्शन भी होता है, ऑप्शन के रिजल्ट्स भी वहां पे पोस्ट हो रहे होते हैं। तो नाउ आई कम टू म्यूचुअल फंड्स। डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज का भी लिंक है म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स जो है वो, उसमें पिछली वाली स्लाइड में जिस तरह हमने बात की, कैटेगरीज होती हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा कंपाउंडिंग इम्पैक्ट मिलता है, क्योंकि आपको एवरी डे आपका आपकी यूनिट्स की प्राइस बढ़ रही होती है। और अगर आप देखें तो डे एंड पे आप नेट एसेट वैल्यू, यानी पर यूनिट प्राइस क्या, पर यूनिट क्या प्राइस हुई है डे एंड पे, वो आपको 4 बजे के बाद अपने मूव आपकी वेबसाइट पे नैव मिल जाएगी। अपने पर्टिकुलर फंड की आप नैव देख सकते हैं और अपना
कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास 500 यूनिट है और 10.2 नैव चल रही है तो उसकी क्या वैल्यू बनेगी। देन लॉन्ग टर्म में एनएसएस भी आ जाता है क्योंकि 3 ईयर सर्टिफिकेट्स हैं, 10 ईयर सर्टिफिकेट्स हैं, सो एंड सो फोर्थ। अगेन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी आप एक्सचेंज, they are like mutual funds, very low fee, managed by an asset management company, but available through the stock exchange brokerage account. So किसी भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है तो आप उसमें ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई हैव सम क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप, आई वुड इनकरेज के सब प्लीज अपने जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं आप प्लीज Q&A में जरूर पोस्ट करें। मैं कुछ जैसे मेरी स्लाइड्स खत्म होती हैं आई विल टेक योर क्वेश्चंस आल्सो। रिटायरमेंट अकाउंट्स एज आई सेड वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स हैं जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू मिलती हैं। ईटीएफ की मैं इनफैक्ट थोड़े से देर में स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलूंगी लाइव, एंड देन वहां से मैं आपको सारी डिटेल्स इसमें दिखा दूंगी ईटीएफ किस तरह फंक्शन करता है, इक्विटीज किस तरह फंक्शन कर सकती हैं और आप क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं टू लर्न मोर। ये कुछ रेलेवेंट लिंक्स हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखने के लिए। आप म्यूफैप यानी म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वेबसाइट है mufap.com.pk, इसकी वेबसाइट पे आप अपने म्यूचुअल फंड के बारे में मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज आपको नजर आएंगी, कब से वो फंड्स लॉन्च हुए हैं, उन फंड्स में कितनी एक्टिविटी हुई है, क्या साइज है फंड का ओवर द इयर्स, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 ईयर, 6 मंथ, 5 इयर्स, टोटल लॉन्च से अभी तक टिल डेट कितना रिटर्न्स दिए हैं उन फंड्स ने। सो वो आपको जो हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन है वो बहुत यूजफुल होती है टू एक्चुअली मेक एन असेसमेंट कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, किस तरह आप अपना म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाएं। क्या आप रिस्की फंड्स में जाना चाहेंगे, क्या आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न के को सामने रख के इक्विटीज में जाना चाहेंगे। दैट इज योर कॉल ऑफ कोर्स एज एन इन्वेस्टर। फिर इसके बाद मैंने एजबीएल एसेट मैनेजमेंट का वेबसाइट दिखाई है, इसी तरह यूबीएल एसेट मैनेजमेंट की वेबसाइट है। सो डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं जिसपे वो अपनी फंड मैनेजर रिपोर्ट हर महीने की इशू करते हैं। वो उस फंड मैनेजर रिपोर्ट में आपको आपके पर्टिकुलर फंड की होल्डिंग्स क्या है, यानी बैक एंड पे आप जिस जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है वो फंड मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स में कर रहा है, पब्लिक बॉन्ड्स में कर रहा है, वो किधर कर रहे हैं, कौन से टीएफसीज लिए हुए हैं उस पर्टिकुलर फंड ने। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट में एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे मिलेंगी। नेशनल सेविंग स्कीम्स की वेबसाइट का मैंने लिंक दे दिया है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रेट्स की लिंक्स मिल सकते हैं, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या रेट्स रहे हैं सिंस इंसेप्शन, वो सारा हिस्टोरिक रिटर्न नजर आएगा आपको। और interestingly you will be able to see how the interest rate has an impact on the return या on the profit rates of the national saving schemes। फिर पीमेक्स की वेबसाइट का भी मैंने यहाँ लिंक दिया है, वो अगर आप खोलें तो आपको उसका पूरा ट्रेडिंग वो नजर आ जाएगा कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उनकी क्या लाइव प्राइसेस हैं। फॉरेक्स रेट अपडेट्स के लिए forex.pk, जमीन.pk का मैंने जिक्र किया है, और यहाँ मैंने एक स्टेट बैंक का नोटिस डाला हुआ है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। सो आई थिंक इसको जरूर देखें और इसको पढ़ें और समझें कि इसके अंदर किस किस्म के चैलेंजेस हैं इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो और इफ यू प्लान टू। वी एज द स्टॉक एक्सचेंज वुड नॉट रेकमेंड एज, क्योंकि इट इज हमारे हिसाब से स्टेट बैंक के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट्स जो है लीगल उसके अंदर फ्रेमवर्क्स के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में नहीं आती। अब चलते हैं थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक्स क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फैक्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। ये एक मार्केट है जहां बायर्स एंड सेलर्स कम टू एक्सचेंज। कोई बेचना चाहता है शेयर्स किसी कंपनी के, कोई खरीदना चाहता है, कोई मजीद 2-3 कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहता है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है, कोई सुकूक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहता है। यहाँ आके आप
आपको एक मार्केट प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। कंपनीज आती हैं, कंपनीज लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करती हैं, चाहे वो अपने शेयर लिस्ट करके कैपिटल रेज करें मार्केट से, या वो डेट इशू करके कैपिटल रेज करें मार्केट से। ये दोनों तरीके होते हैं कि कंपनीज आके, गवर्नमेंट्स भी आके स्टॉक एक्सचेंज से कैपिटल रेज कर सकती है। इट इज a marketplace which provides opportunities to investors, as I said, buying and selling of shares and bonds and each exchange traded funds as well. It is a completely internet-based trading platform. और जब आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं तो आपका ब्रोकर आपको एक ट्रेडिंग ऐप भी देता है if you want to trade through the app. So again, it is your choice whether you want to invest through the trader या आप अपनी खुद स्टडी करके, खुद असेसमेंट एंड एनालिसिस करके ऐप के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। Very simply, how does the stock exchange work? Company comes, they float their shares in the market, which is called the primary market. जब कंपनी आती है और आईपीओ करती है या अपने आप को लिस्ट करती है, तो वो अपनी कंपनी के 20%, 30%, 40%, वट एवर परसेंट दे डिसाइड, वो अपने शेयर्स मार्केट में लाते हैं। और हर शेयर की एक सर्टेन प्राइस होती है जिसको फेस वैल्यू कहा जाता है। आईपीओ के थ्रू फेस वैल्यू पे वो शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या कंपनीज या फंड मैनेजर्स उन कंपनी के शेयर्स यानी आईपीओ में सब्सक्रिप्शन करते हैं शेयर्स की। वो अगेन प्राइमरी मार्केट में आता है जब इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स लेता है इन द फर्स्ट टाइम। इट्स कॉल्ड द आईपीओ या इसको प्राइमरी मार्केट भी कहा जाता है। आगे बढ़े उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स जब मार्केट में आ जाते हैं, उनके पास शेयर्स हैं, उन्हें फर्दर शेयर्स बेचने हैं या फर्दर खरीदने हैं, लेटर ऑन खरीदने हैं, 3 महीने बाद खरीदने हैं और शेयर्स खरीदने हैं अगर उन्हें कॉन्फिडेंस है उस पर्टिकुलर कंपनी पे, या मुख्तलिफ और कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो वो मार्केट से लेते हैं जिस और अपना बाय रिक्वेस्ट या बाय का सौदा प्लेस करते हैं थ्रू दी ऐप या ट्रेडर, एंड अपनी बाय प्राइस भी इंडिकेट करते हैं। वंस यू डू दैट, कोई और इन्वेस्टर जो कि शेयर होल्डर उन शेयर्स को बेचना चाहता है, जिस प्राइस पे बेचना चाहता है, वो अपना बाय का सौदा लगाता है। जब बाय और सेल की प्राइस मैच होती है तो द ट्रांजैक्शन या ट्रेड गोज थ्रू और वो एग्जीक्यूट हो जाती है ट्रेड। जब वो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो जो बायर होता है उसको शेयर्स मिल जाते हैं, जो सेलर होता है उसको पैसे मिल जाते हैं और वो शेयर्स हैंड ओवर कर देता है। और ये सारा प्रोसेस नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज एनसीसीपीएल, नेशनल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कंपनी, और सीडीसी के दरमियान ये बैक एंड पे सेटलमेंट की जाती है और आपके शेयर्स मूव कर दिए जाते हैं आपके सेंट्रल डिपॉजिटरी के सब अकाउंट के अंदर। तो दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। फिर ओवर टाइम आपने जो शेयर्स खरीदे हैं उनकी अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो उसको कहा जाता है कि कैपिटल गेन, और अगर उसकी प्राइस ना भी इंक्रीज हुई और वो कंपनी डिविडेंड देती है तो आपको प्रॉफिट फ्रॉम द डिविडेंड भी मिलता है। सो बेसिकली अ शेयर होल्डर कैन अर्न इन टू वेज। डिविडेंड मिलने के लिए शेयर आपके पास ही रहता है, लेकिन अगर आप कैपिटल गेन लेना चाहते हैं तो शेयर आपको बेचना होता है। जब आपने शेयर बेच दिया और आपने अपना गेन रियलाइज कर लिया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। डिविडेंड इज द प्रॉफिट दैट अ कंपनी, द शेयर की जो एक्चुअल कंपनी है उसने प्रॉफिट किया और उसने शेयर किया अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ, तो उसको डिविडेंड कहा जाता है। शेयर क्या है? शेयर इज इशूड बाय कंपनीज, अप्रूवल ऑफ एसईसीपी, शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मार्केट, प्रॉफिट्स डिविडेंड्स मिलते हैं उनको। स्क्रिप्टलेस फॉर्म ऑफ कस्टडी विद सीडीसी। आपको अभी कागज पे शेयर्स उठाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके 10,000 शेयर्स हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फाइल ऑफ पेपर्स नहीं मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास रिफ्लेक्ट करेंगे। सीडीसी के अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास आएगा जिसके अंदर आपके शेयर्स, जब आपने परचेज किया आपको ट्रांजैक्शन की नोटिफिकेशंस आती हैं जिससे आपको अ, पता चलता है कि आपने इतने शेयर्स परचेज कर लिए हैं और आपकी टोटल होल्डिंग क्या है। यह आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बताता है सीडीसी के अंदर आपकी क्या होल्डिंग है। या आपका अगर सीडीसी के अंदर अपना सब अकाउंट के अलावा आपने अपना इन्वेस्टर अकाउंट भी खोला हुआ हो, शेयर्स वहां मूव कर सकते हैं जो कि
ऑब्वियसली फिर एक्सेसिबल नहीं होंगे बाय द ब्रोकर। जब आप सब अकाउंट में ही रखेंगे अपने शेयर्स, तो वो किसी वक्त भी आपका ब्रोकर आपके कहने पे ट्रेड कर सकता है। बट आप अपने पर्सनल आईएएस अकाउंट में जब मूव करते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर बाइंग एंड सेलिंग, तो फॉर सेलिंग रियली। तो उस टाइम पे आप अगर सेल करना चाहते हैं, तो आपको वापस अपने ब्रोकरेज सब अकाउंट में शेयर्स को मूव करना होगा। सो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में? ऑफ कोर्स टू बिकम पार्ट ऑफ अ कंपनी, इफ दे बिलीव दैट अ कंपनी इज स्ट्रांग एंड दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट कंपनी, दे वांट टू बेनिफिट, चाहे वो कैपिटल गेन के थ्रू बेनिफिट करना चाहें या आप डिविडेंड्स के थ्रू बेनिफिट करना चाहें, आप उस कंपनी का हिस्सा होते हैं। एज अ शेयर होल्डर यू हैव अ वॉइस, यू हैव राइट्स। इनफैक्ट जो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि आप शेयर होल्डर राइट्स का सेक्शन जरूर पढ़ लें। इसकी पूरी गाइड है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे शेयर होल्डर राइट्स की। और उसमें बीइंग अ शेयर होल्डर आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आप कंपनी से किस किस्म की क्वेरीज कर सकते हैं, किस किस्म की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, और किस किस्म की वोटिंग लेवल राइट्स भी क्या हैं आपके। तो इसमें ये सारी डिटेल में मौजूद है। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप उसको जरूर पढ़ें। अगेन ओवर द लॉन्गर टर्म पीरियड रिटर्न्स दिखाए गए हैं, रिटर्न्स होते हैं, अच्छे रिटर्न्स मिले हैं लोगों को स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट से, अगर आप उसको टोटलिटी में देखें। लिक्विडिटी अगेन, शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, तो आपके पास अगर 15 कंपनीज के शेयर्स हैं मुख्तलिफ क्वांटिटीज में, और आपको किसी वक्त भी कैश की जरूरत है, तो उसमें से जो कुछ ऐसी कंपनीज है जिसमें आपने हाईएस्ट रिटर्न लिया है, हाईएस्ट कैपिटल गेन हो रहा है आपको, तो आप उनको, इफ यू नीड मनी यू कैन सेल देम एंड यू हैव द मनी राइट अवे इन अ डे इन योर अकाउंट। सो वो रियल टाइम में सेल एंड बाय एंड सेल होता है, जो उसकी सेटलमेंट T+2 यानी 2 दिन में सेटलमेंट हो जाती है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट? इसको मैंने कवर किया है। प्राइमरी मार्केट में आप किस तरह कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट में आप किस तरह कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं और आपको पैसों की जरूरत है, तो आप बैंक्स के पास उन शेयर्स को भी लियन मार्क करा के उसके अगेंस्ट लोन, एज अ कंपनी लोन ले सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। वेयर डू यू बिगिन? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, हमारे रेगुलर स्टैंडर्ड लाइसेंस ब्रोकर्स की लिस्ट मौजूद है। 2-3 ब्रोकर्स को आइडेंटिफाई करें जो आपके शहर में हैं, जो आपकी जिनके हेड ऑफिस हैं आपके शहर में, या जिनका आपने नाम सुना है, या आपके सर्कल में कोई रिकमेंडेशन है, तो आप 2-3 ब्रोकर से बात करें, आइडेंटिफाई करें, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स बताएं कि आप डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप कंपाउंडिंग देख रहे हैं, या आप एक इनकम देख रहे हैं, डिविडेंड इनकम के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके रिस्क कितना है, आप किस किस्म का रिस्क ले सकते हैं, या आप टोटली रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं, डिफाइन करें, उन्हें बताएं। उसके बाद वो आपका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएंगे, वो बताएंगे कि आपको इन 5 6 7 वट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या वो हो सकता है ये बोलें कि आप ETF में इन्वेस्ट करें। डू टेक देयर व्यूज। फिर अपने ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलें, CDC अकाउंट खोलें। इट इज एडवाइजेबल कि आप अपना CDC पर्सनल अकाउंट भी खोलें, जो कि इन्वेस्टर अकाउंट होता है, IAS अकाउंट कहते हैं। फिर आप अपने बैंक अकाउंट को, जब आप ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं, तो आप अपना बैंक अकाउंट को उसके साथ लिंक भी करते हैं, आप अपना ईमेल भी लिंक करते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर भी लिंक करते हैं। यू विल ट्रांसफर मनी और डिपॉजिट मनी इन योर अकाउंट, ब्रोकरेज वाले अकाउंट में, फ्रॉम योर बैंक और थ्रू अ चेक। Cash transaction is not at all acceptable here. Once you have money in your brokerage account, आपकी ऐप पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने 50,000 डाल दिए, लाख डाल दिए, वट एवर अमाउंट यू पुट इन,
यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, मार्केट को देखें, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें और मुस्तकिल ब्रोकर के साथ इन टच रहें या अपने एप्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते रहें, अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स देखते रहें। जरूरी नहीं आप डेली देखें, बट यू शुड कीप अ लुक आउट ऑन इट। इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, आई थिंक बहुत ऑटोमेशन इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, एंड बेस्ड अपॉन दैट आपको आपकी बैंक अकाउंट के अंदर आपकी डिविडेंड फॉल करती है डायरेक्टली। जो भी आपने बैंक अकाउंट लिंक किया है, जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है और इशू करती है, वो आपकी स्ट्रेट बैंक अकाउंट में फॉल करता है पीरियोडिकली व्हेनेवर इट इज अनाउंस्ड और इशूड। एट अ ग्लांस, रोल इन इकोनॉमी, हम अगर स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं तो इन इकोनॉमी में क्या रोल है स्टॉक एक्सचेंज का? कंपनीज को डाइवर्सिफाई करना है, कंपनीज को एक्सपैंड करना है, कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना है, गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, नए डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपेंशन करनी है। दे कैन लुक इनटू द स्टॉक एक्सचेंज टू रेज कैपिटल। उस कैपिटल के अगेंस्ट कंपनीज शेयर या गवर्नमेंट शेयर्स या बॉन्ड्स इशू करती हैं। रिटर्न्स एक्सचेंज के ओवर अ लॉन्गर टर्म 10.5% एनुअल एवरेज रिटर्न्स है। अगर पिछले 10 साल के रिटर्न्स की बात करें, लास्ट 1 to 2 years में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए, मजीद 10% से ऊपर रिटर्न्स दिए स्टॉक एक्सचेंज में। सिग्निफिकेंट फॉरेन कैपिटल आता है पाकिस्तान में। जब ये कैपिटल आता है पाकिस्तान में थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, जिसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफपीआई के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में जब फॉल करता है कैपिटल, तो वो डायरेक्टली कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, फंड मैनेजर्स इंटरनेशनल, एंड उनको ऑब्वियसली द मनी इज comes into the country that way and they get shares. जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं, जब वो एक्सपैंड करती हैं, कैपिटल रेज करती हैं, तो वो जॉब्स क्रिएट करती हैं। व्हेन दे क्रिएट जॉब्स, तो ऑब्वियसली दे एक्सपैंड देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, वो अपना साइज इंक्रीज करती हैं, वो अपनी सेल्स इंक्रीज करती हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हो या डोमेस्टिक। They generate tax for the government. So all in all, it's a very important part of the economy. Whether the government benefits from it and leverages it is there, obviously. Whether companies जो आके उसको utilize करें इस benefit को, वो obviously it's up to them. But this is an important part of the country's economy. इस स्टॉक एक्सचेंज को देखें, 524 लिस्टेड कंपनीज हैं, 3 कंपनीज ग्रोथ एंटरप्राइज या स्मॉल कंपनीज बोर्ड पे हैं, 236 ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड हैं, 258 शरिया कंप्लायंट कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल। शरिया कंप्लायंट कंपनीज वो हैं जो कि अपनी पूरी बिजनेस ऑपरेशंस इस्लामिक आइडियोलॉजी के हिसाब से, शरिया के हिसाब से जो फ्रेमवर्क दिया है उसको कंप्लाई करके कंटिन्यूअसली कंप्लाई करती रहती हैं, तो वो शरिया कंप्लायंट लिस्टेड कंपनीज या कराची मीजान इंडेक्स में कैटेगराइज कर दी जाती हैं। और ये हमारी मीजान बैंक के स्कॉलर्स हैं, एक टीम है, एक पैनल है ऑफ स्कॉलर्स जो कि इन कंपनीज की प्रोसेसेस, इनकी एक्टिविटीज, ऑपरेशन उसको मुस्तकिल मॉनिटर कर रहे होते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त 10 ट्रिलियन है पाक रुपीज में और 36 बिलियन है डॉलर्स में। मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन साइज ऑफ द मार्केट, यानी कितनी कंपनीज हैं, उनके कितने शेयर्स हैं, किस प्राइस पे एट एनी पॉइंट इन टाइम क्या बनता है नंबर, वो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। 3,23,000 इन्वेस्टर्स हैं इस वक्त, 100 से ऊपर, 190 से ऊपर ब्रोकर्स हैं और 17 मुख्तलिफ इंडेक्सेस हैं। लेकिन जो मेन रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स है जिसको दुनिया फॉलो करती है, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 या KSE 100 इंडेक्स है, और शरिया कंप्लायंट में KMI 30 इंडेक्स है। बाकी ETF के इंडेक्सेस भी मौजूद हैं। कैपिटल मार्केट इको सिस्टम अगर आप देखें तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, मार्केट प्लेटफॉर्म है जहां आप बाय एंड सेल के लिए ऑर्डर्स और ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। उन ट्रांजैक्शंस और ऑर्डर्स की क्लियरिंग और सेटलमेंट NCCPL करता है। आपके शेयर्स को संभाल के रखना या सेलर को हैंड ओवर कराना, ये सारा काम CDC यानी डिपॉजिटरी कंपनी का है। ये CDC इज ऑल्सो
security, it offers you sub accounts and investors accounts. इसका रोल है, इसके अलावा भी है, बट यहाँ कैपिटल मार्केट उसके अंदर स्कोप में आईएस अकाउंट और ब्रोकर्स अकाउंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को सेव करना कह लें, या शेयर्स की डिपॉजिटरी या लॉकर ऑफ शेयर्स है ये। कैपिटल मार्केट की इंटरमीडियरीज के थ्रू आप आ सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ब्रोकर्स हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनी थ्रू देयर इक्विटी या एसेट एलोकेशन फंड्स, एंड दैट इज हाउ द स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर चाहे वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, फूड एंड पर्सनल केयर है, 36 मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। तो आपको जो सेक्टर समझ आते हैं आप उन सेक्टर्स में कंपनीज की लिस्ट देखें और उन सेक्टर्स पे काम करें, इन्वेस्टमेंट्स करें। ऑटोमोबाइल असेंबल्स 3% है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, टेक्सटाइल कंपोजिट कंपनीज है, टोबैको है, सो फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट है, ये मुख्तलिफ मेजर सेक्टर्स हैं out of the 36 sector. I would say these are the top 10 sectors. आई थिंक इसको मैं स्किप करूंगी। इस वक्त हम सिर्फ रेडी मार्केट या रेगुलर मार्केट की बात करेंगे, फ्यूचर्स, डिलीवरेबल फ्यूचर्स, इन सब के ऊपर हम नहीं जाना चाहेंगे। हम अभी सिर्फ सिंपल रेडी मार्केट और लॉट मार्केट, स्क्वायर अप मार्केट, जो आपके पास कैश अवेलेबल है उससे आप स्टॉक्स खरीदें और उनमें इन्वेस्ट करें। इसके अलावा शरिया कंप्लायंट या ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मौजूद हैं जिसमें शरिया कंप्लायंट ऑप्शन भी है और कन्वेंशनल ऑप्शन भी है, इक्विटी ट्रेड ईटीएफ भी हैं और डेट ईटीएफ भी है और शरिया कंप्लायंट ईटीएफ भी मौजूद है। ईटीएफ के बारे में थोड़ा सा ये बताती चलूं, एनआई इस वक्त ये मुख्तलिफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ईटीएफ स्टॉक्स पे, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। एनआईटी का एक ईटीएफ है जिसका नाम है एनआईटी पाकिस्तान गेटवे ईटीएफ, इसके अंदर 15 स्टॉक्स हैं। यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइज ईटीएफ जो यूबीएल एसेट मैनेजमेंट का है, उसके अंदर 9 मुख्तलिफ स्टॉक्स का ग्रुप किया हुआ है। मीजान पाकिस्तान ईटीएफ है जो फर्स्ट शरिया कंप्लायंट ईटीएफ है, उसके अंदर 12 टॉप कंपनीज शरिया कंप्लायंट है जिसका ग्रुप किया हुआ है। ईटीएफ इज अ ग्रुप, जिस तरह म्यूचुअल फंड्स इज अ ग्रुप ऑफ मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट, सो इसमें इक्विटीज के। तो एनबीबी पाकिस्तान का ईटीएफ है जिसमें 15 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी 15 कंपनीज के स्टॉक्स हैं। जेएस मोमेंटम अल्फला कंज्यूमर ईटीएफ, एचबीएल टोटल ट्रेजरी ईटीएफ है जो कि एचबीएल का डेट मार्केट या गवर्नमेंट डेट का ईटीएफ है। इसमें स्टॉक्स नहीं है, इसमें इक्विटी नहीं है, बेसिकली इट्स अ ट्रेजरी ईटीएफ, यानी टी बिल्स और पीआईबीज और इन चीजों के ऊपर मिक्स करके मुख्तलिफ प्रोपोर्शन में बनाया गया है टोटल ट्रेजरी ईटीएफ। जेएस ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर ईटीएफ है और लास्ट महाना इस्लामिक ईटीएफ है। ये प्योर सेकंड शरिया कंप्लायंट ईटीएफ है जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है 2024 में। इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज मौजूद हैं स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट टिकर अगर आप देखें वेबसाइट के ऊपर तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप मुख्तलिफ इंडिसेस को देख सकते हैं कि KSE 100 है, KSE ऑल शेयर, KSE 30, KMI 30 यानी कराची मीजान इंडेक्स आपका शरिया कंप्लायंट इंडेक्स है। मार्केट समरी आपको नजर आ रही होगी, उसी में आप क्लिक करें व्यू ऑल तो आपको पूरी मार्केट की समरी मिल जाएगी कि किस वक्त क्या शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, कौन सी कंपनीज हैं, कौन सी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज मौजूद हैं। मार्केट हाइलाइट्स, ये जब मार्केट खुलती है तो आपकी वेबसाइट के मेन पेज पे मार्केट हाइलाइट्स नजर आ रहा होता है कि मार्केट स्टेटस क्या है, इस वक्त ओपन है, क्या चल रहा है, 100 इंडेक्स वो सबसे ज्यादा, दिस इज द मोस्ट followed index. In fact, it is the representative index of the stock exchange. टोटल मार्केट के अंदर क्या वॉल्यूम्स हैं, क्या वैल्यू का टर्नओवर हुआ है, ये सारी चीजें एक इन अ स्नैपशॉट आपको मौजूद मिल जाती है। देन हमारे पास एक पूरा डेटा पोर्टल मौजूद है जिसमें आप कंपनीज के बारे में देख सकते हैं, मार्केट समरी देख सकते हैं ऑन रेगुलर मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट और आईपीओ मार्केट में कौन से हैं, क्या एक्टिविटी हुई है। स्टॉक स्क्रीनर को देखें तो आप स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में क्या काम हुआ है या क्या काम हो रहा है, हिस्ट्री निकाल सकते हैं। ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है, आप डाउनलोड्स भी देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर स्टॉक स्क्रीनर जिसमें आप
सेक्टर अगर सिलेक्ट करते हैं सीमेंट सेक्टर, तो ड्रॉप डाउन में आपको सारे सीमेंट के स्टॉक्स नजर आएंगे। आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर से सिलेक्ट किया तो आपको उसमें उन सारे कंपनीज की डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड इफ यू सी, मार्केट कैप नजर आएगा, 1 ईयर चेंज नजर आएगा, डिविडेंड क्या दिया है, फ्री फ्लोट कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टॉक स्क्रीनर पे मिल जाती है। और आप अगर आप देखें तो ये इंडिविजुअल लेफ्ट पे सिंबल्स लगे हुए हैं, सिंबल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो उस कंपनी का पूरा फुल पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स, उसके फाइनेंशियल्स, उसके शेयर होल्डर्स, उसके डायरेक्टर्स की वेबसाइट क्या है, वो क्या कौन से बिजनेस में है, कौन से सेक्टर में है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन वन पेज एक जगह पे अवेलेबल है। इन्वेस्टर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो आप लोग के कुछ सवाल होंगे जो के होंगे कि हम कैसे सेलेक्ट करें ब्रोकर, हम अकाउंट कैसे खोलें, आप हम अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे रखें, ये सारी इंफॉर्मेशन एक इन्वेस्टर सेक्शन है हमारी वेबसाइट का, जिसका उर्दू में भी पूरा इंफॉर्मेशन मौजूद है। Now, when you go to this section, you can take a look at it, read upon it, and then you do the activity. In fact, लास्ट सेशन में मैंने वर्चुअल पोर्टफोलियो का भी बताया था, जिसमें आप अपना एक वर्चुअल अकाउंट खोल के उसके अंदर मार्केट में इन्वेस्ट करके सीख सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किस तरह इन्वेस्ट करें, क्या सिंबल्स हैं, कौन सी कंपनी है, उसका क्या नाम है, क्या सिंबल है, ये सारी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी। फाइंड अ ब्रोकरेज, राइट, जब आप होम पेज पे जाते हैं तो राइट पे अगर आप देखें, इसके ऊपर आप अपना माउस हवर करेंगे तो यू विल सी ये सारे ये बाहर आके स्लाइड आउट होता है। यू कैन फाइंड अ लिस्टेड कंपनी, यू कैन फाइंड अ ब्रोकरेज हाउस, ब्रोकरेज फर्म की पूरी लिस्ट मौजूद है, आप उनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं। इनफैक्ट ऑन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, काफी ब्रोकर्स के पास उसकी सेपरेट लिस्ट मौजूद है वेबसाइट पे, इसी पेज पे। बहुत सारे सारे ब्रोकर्स आपको सिंपल अकाउंट यानी आसान अकाउंट, जिस तरह बैंक में होता है उसी तरह सिंपल अकाउंट, सहूलत अकाउंट होता है, जो कि आप सिर्फ सीएनआईसी और बहुत बेसिक बैंक अकाउंट और इस तरह की इंफॉर्मेशन दे के खोल सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, टॉप लिमिट इज 1 मिलियन, 1 मिलियन वर्थ का आप काम कर सकते हैं। आपको रेगुलर अकाउंट खोलना है तो फिर आप रेगुलर अकाउंट खोलें, बट अगर आपको छोटे लेवल पे काम करना है इनिशियली, या आपको शुरू करना है छोटे लेवल पे, या आप स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं, तो फिर आप सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें आपको जॉब लेटर, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीजें देने की जरूरत नहीं होती है, एंड आप सिंपली ये अकाउंट ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। Now I'll take a quick look at the questions that you have posted and I will answer them. Can we get these slides? इस वीडियो की पूरी रिकॉर्डिंग YouTube के PSX के YouTube चैनल पे मौजूद होगी। Please take a look at that. You can rerun the recording, you can revisit this, and you will have the slides also in that way. Can I get presentation of last webinar? I think last webinar in the अगर अभी तक लगा नहीं है तो next few days में लग जाएगा. You should be able to see the recording of that. ठीक है. Then और क्या questions हैं? There is what is KSE 100 index and role of indices. KSE 100 इंडेक्स मैंने आई थिंक पहले भी बात की, ये रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स है। इसमें इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो वाली कंपनीज जो कि मार्केट साइज, फ्री फ्लोट जिनका है, एक सर्टेन पोर्टफोलियो है, एक कॉम्बिनेशन होता है, फॉर्मूला अप्लाई होता है कि ये कंपनीज इस साइज की, इतने जो जिनके अंदर इतनी ट्रांजैक्शन होती हैं, ट्रेड होती हैं, और इनका फ्री फ्लोट इतना है, हर सेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव कंपनी। सो लेट्स से देयर आर 36 सेक्टर, तो टॉप सेक्टर्स की एक एक कंपनी होगी जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनी होगी ऑफ 36 सेक्टर्स। फिर उसके अलावा वो कंपनी जो कि फ्री फ्लोट जिनका एक सर्टेन लिमिट को कवर करता है, तो इस तरह की चीजें डाल के हम जो रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज निकलती हैं वो केसी 100 इंडेक्स में शुमार की जाती हैं। Mutual funds, there is money market fund. How do they make money? मनी मार्केट फंड इन्वेस्ट करता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, एंड यू फंड मैनेजर रिपोर्ट पे अगर आप देखें तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि मनी मार्केट फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के। सो they just go for money market instruments, and
and that is how they make money. They work with the state bank, with the primary dealers, with the other banks, and accordingly have a certain profit rate जो कि वो फिर अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं या यूनिट होल्डर्स को देते हैं. विल यू सेंड दिस? नो. अच्छा, आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया है. या सर, हम इस तरह तो सबको नहीं भेज सकेंगे, बट आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इसको वेबिनार को की रिकॉर्डिंग जरूर देखें. कैन वी कॉल एसेट्स बबल्स टू क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग? देखिए, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जो है, एज आई सेड, इट इज इन अ ग्रे मार्केट. आप लोग कर भी रहे हैं तो भी इट्स देयर इज ऑलवेज दिस इनहेरेंट रिस्क कि हमें नहीं पता कि वो पैसा किधर जा रहा है. बाकी वो क्रिप्टो एक्सचेंज है या कोई डमी एक्सचेंज बना के किसी ने आपसे पैसे लिए हैं. सो रियली यू नीड टू सी, क्योंकि देयर ऑल टाइप्स ऑफ टेक्निकल या डिजिटल हैकिंग, देयर इज डिजिटल क्राइम. वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन ऑल दिस. और एक चीज, एक इंस्ट्रूमेंट या एसेट क्लास जो कि आपकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंपनी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंपनी ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस के अंडर कवर नहीं होती हैं, तो या उसका फ्रेमवर्क नहीं मौजूद है, उसको वो रेगुलेटेड मार्केट में नहीं आती है, तो इट्स बेटर टू एब्सटेन फ्रॉम दैट. डिफरेंस बिटवीन रेगुलर मार्केट एंड फ्यूचर्स मार्केट. रेगुलर मार्केट वो है जहां आपको आज की प्राइस मिल रही है, आपने अपने पास रेडी मार्केट में आपके पास कैश है, आपने कैश से पैसे और शेयर सेलेक्ट किए, आपने शेयर्स खरीद लिए, वो आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन T+2 सेटलमेंट के बाद आ जाते हैं. फ्यूचर्स मार्केट होती है कि आप आज बैठ के आज फ्यूचर प्राइस में सौदा करते हैं. वो 3 महीने बाद, 1 महीने बाद मैच्योर होता है, और तब आपको या तो उसका पैसे मिलते हैं कैश सेटल फ्यूचर्स में, या आपको वो वाले शेयर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 मंथ कैश. फ्यूचर्स मार्केट का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके बाद वो शेयर्स आपको मिलेंगे. लेकिन आज की प्राइस नहीं होगी, वो एक फ्यूचर प्राइस होती है, जिसपे ऑब्वियसली इफ यू गो फॉर इट, तो आप अग्री करते हैं कि फ्यूचर में 2 महीने बाद जो भी प्राइस होगी मुझे वो मंजूर है. सो ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ फ्यूचर मार्केट में लोग एंट्री करते हैं. हाउ मच मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑन इनिशियल स्टेज फॉर न्यू इन्वेस्टर? जब आप अकाउंट खोलते हैं तो ये आपको जनरली ब्रोकर से एडवाइस मिलती है कि 50,000, 20,000, 10,000, वट एवर अमाउंट द ब्रोकर एडवाइजेज यू, एंड इसमें दूसरा एक और तरीका देखने का ये होता है कि आप डिसाइड करें कि मैंने कौन सी कंपनी के शेयर्स लेने हैं और उस शेयर की क्या प्राइस है, तो कितने शेयर्स आप लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के या उन 4-5 कंपनीज के जो आपने शॉर्टलिस्ट की. उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं. ओवर टाइम एवरी मंथ आप कुछ शेयर्स खरीदते रहें, और एज आई सेड लास्ट टाइम इन माय प्रीवियस, वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आप फायदा भी ले सकते हैं इस तरह. हाउ डज आई गेट रजिस्टर्ड विद ब्रोकर? ब्रोकर को रीच आउट करें, अकाउंट खोलें, डायरेक्ट ऑनलाइन अकाउंट, डिजिटल अकाउंट भी आप खोल सकते हैं. जब आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर दिया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ब्रोकर्स हैं मौजूद लिस्ट पूरी, जो कि डिजिटल अकाउंट ओपनिंग भी देते हैं. हाउ डज सीबीसी वर्क? सीबीसी का काम ये है कि बैक एंड पे आपके शेयर्स, चाहे वो ब्रोकर हाउस की सब अकाउंट में मौजूद हों, उसकी सेग्रीगेशन करना, उसको मॉनिटर करना, अ, उसकी स्टेटमेंट इशू करना, ये सारी चीजें सीबीसी के उसमें आती हैं. जेम बोर्ड इज ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट बोर्ड. एक कंपनी जो कि 200 मिलियन से उबव साइज से बड़ा साइज है, वो आके जब लिस्ट करती है, मार्केट में आती है, तो वो मेन बोर्ड पे आती है. अगर एक कंपनी है जिसका 25 मिलियन साइज है या 50 मिलियन है साइज पेड अप कैपिटल का, तो वो जब लिस्ट होती है मार्केट में आके, तो वो जेम बोर्ड पे लिस्ट होती है. ये स्मॉलर कंपनीज का बोर्ड है. If Y2 change is continuous increase, then should be investment in this company. What is standard value of Y2D? देखिए, इसके लिए आई वुड रेकमेंड कि आप अपने ट्रेडर से बात करें, उससे समझें मुख्तलिफ कंपनीज के क्या रेट्स हैं, उनके क्या इंक्रीज है ईयर टू डेट, क्या चेंज है, कंटिन्यूस चेंज है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी फ्री फ्लोट क्या है, वो कितना डिविडेंड देती है. सो ये स्टडी करना होती है. ये आपको ब्रोकरेज हाउस के साथ हेल्प मिलेगी, फैसिलिटेशन मिलेगी, और आपको मांगनी भी चाहिए.
This is a right of an investor to ask their broker to provide them this kind of advice and information and research share करते रहे. What is meaning of debt securities? Broadly speaking, entire investments या entire market, financial market can be divided into debt and equity. Equity उसको कहते हैं जिसमें आप shares लेते हैं और शेयर होल्डिंग या ओनरशिप, प्राइवेट इक्विटी भी होती है, पब्लिक इक्विटी भी होती है. तो इक्विटी वो होती है कि आप शेयर होल्डिंग लें. डेट वो होती है कि आप या तो लीज करें या लोन लें या सर्टिफिकेट इशू करें, पैसा मार्केट से उठा के उसके अगेंस्ट आप शेयर होल्डिंग ना दें, बट आप प्रॉफिट शेयर करें. सो दैट इज मोर लेस डेट. डेट की टाइप्स होती हैं, गवर्नमेंट डेट है, प्राइवेट डेट है, लोन है, टीएफसी है, बॉन्ड है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ये सारे पेपर है. ये सारी चीजें डेट की कैटेगरी में कवर होती हैं. प्लीज टेल मोर अबाउट हाउ एचबीएल टोटल ट्रेजरी वर्क्स. ओके, इसके जैसे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होते हैं, तो जब आपने टोटल ट्रेजरी के ईटीएफ के में इन्वेस्ट करना है तो आपने ईटीएफ के यूनिट्स परचेज करने होंगे, ऑब्वियसली थ्रू द ब्रोकरेज अकाउंट. एंड वो आपको प्रॉफिट, आपकी प्राइसिंग इंक्रीज होती है तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो आपकी टोटल हो वैल्यू, इन्वेस्टेड वैल्यू. सो लेट्स से अगर आपने ₹1,00,000 के ईटीएफ लिए और कल उसकी प्राइस थोड़ी इंक्रीज हुई तो वो 1,05,000 भी हो सकता है. सो ऑन अ डेली बेसिस आप इसकी, इनफैक्ट ईटीएफ तो रियल, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, तो आप रियल टाइम में उसकी प्राइस इंक्रीज या प्राइस चेंज को मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपको डिफरेंस बेनिफिट मिला. ठीक है. नेक्स्ट टाइम व्हाट विल यू कवर, प्लीज गाइड. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रीड द प्रेजेंटेशन फ्रॉम रिकॉर्डिंग. देखें, इट इज एडवाइजेबल कि आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, सॉरी यूट्यूब पेज पे जाके इसको देखें, बिकॉज हम ये प्रेजेंटेशंस तो नहीं शेयर कर सकते सारे डेटाबेस के साथ. बट हैविंग सेड दैट, we'll see how we can help you. अगेन एज, अच्छा, जो आपका क्वेश्चन था कि थर्ड सेशन में हम क्या करेंगे, थर्ड सेशन में हम मुख्तलिफ चीजें देखेंगे डिटेल में. ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग को स्टडी करेंगे, सहूलत अकाउंट को डिटेल में स्टडी करेंगे, रोशन इक्विटी अकाउंट को देखेंगे जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं वो किस तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मुख्तलिफ और रिसोर्सेज और उसको कवर करेंगे. What does it mean when PSX app notifies that today's stock exchange has plus 399.07 points? यानी KSE 100 इंडेक्स ने आज क्या परफॉर्म किया, यानी उन 100 कंपनीज की टोटलिटी में क्या प्रॉफिटेबिलिटी या क्या इम्प्रूवमेंट रही. उसमें जरूरी नहीं है पूरी 100 कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया, हो सकता है 70 कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 30 कंपनीज ने अच्छा नहीं किया, लेकिन टोटल इंडेक्स जो है बेहतर हुआ है बिकॉज 70 कंपनीज जिन्होंने परफॉर्म अच्छा किया या इंक्रीज हुआ उनकी शेयर प्राइस या उनकी वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग बहुत हाई रही, तो उसका इम्पैक्ट आया है. सो इट इज एडवाइजेबल कि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये इंडिकेटिव होती हैं चीजें कि ऐसी 100 इंडेक्स इज इंडिकेटिव. आप जब इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो आपने जो कंपनी सिलेक्ट की है उस कंपनी के रिटर्न्स देखें, उस कंपनी की 5 ईयर प्राइसिंग देखें, उस कंपनी के 5 ईयर हिस्टोरिक प्रॉफिट्स देखें, फिर डिसाइड करें कि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं. Can we open trading accounts with more than? Yes, you can have multiple trading accounts. 3-4 brokers के साथ भी आप काम कर सकते हैं. I have diversified portfolio for more than 2 years. Still, I am suffering capital loss, although market index has doubled. Again, as I said, it means you need to look at your selection of shares, selection of stocks that you do. It is very important to see your selection of stocks. Index को देख के मत अपनी assessment करें. How much minimum shares one can buy at a time? देखिए, पहले होता था शेयर लॉट साइज होता था कि कुछ कंपनीज का 100, मिनिमम 100 ले सकते हैं, कुछ कंपनीज का 500 ले सकते हैं, कुछ कंपनीज के 50 ले सकते हैं. बट रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज ने वो चीज खत्म कर दी. आप किसी कंपनी का एक शेयर भी लेना चाहें, किसी कंपनी के 5 शेयर भी लेना चाहें, तो ये आपके इख्तियार में है अब. तो आप वन शेयर का लॉट साइज भी अवेलेबल है. Excuse me. How to open?
वर्चुअल अकाउंट खोलने के लिए आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ब्रोकर सेलेक्ट करें। ब्रोकर्स की लिस्ट मौजूद है जो कि आपको वर्चुअल या डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उनकी अकाउंट ओपनिंग पेज पे जाके, उनकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट ओपनिंग पेज है जिस पे जाके आप अपना वर्चुअल अकाउंट खोल सकते हैं। So yes, I think I have answered all the questions. I shall be moving now and close the session today. And thank you. Apologize for the uh, delay in starting, but I think हमें थोड़ा सा wait करना होता है times के participants हो जाएं. So thank you very much, and I will close this webinar right now. Thank you, ji. Allah Hafiz.